السلام علیکم دوستوں، ہمارے چینل قصہ کہانی میں آپ کا خوش آمدید۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کر دیں اور چینل کو کر لیں سبسکرائب۔ سائبیریا کے جنگلات میں شدید برف باری کے باعث تمام درختوں کا رنگ سفید ہو گیا۔ راستے پوری طرح بند ہو چکے تھے اور چرند پرند اور یہاں تک کہ خوفناک درندے بھی اس برف کے خوف سے اس علاقے کو خیر باد کہہ چکے تھے۔ جو نہیں گئے تھے شدید برف باری کے باعث جم کر ہلاک ہو گئے تھے۔ اس بڑے اور گھنے جنگل میں اب صرف ٹارزن رہ گیا تھا اور برف باری کے مقابلے میں ڈٹا ہوا تھا۔ برف باری کی وجہ سے پھل پھول درخت سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور کوئی چیز اس جنگل میں نہیں بچی تھی۔ اس صورتحال کے پیش نظر اب ٹارزن بھی اس جنگل کو چھوڑنے مجبور ہو گیا تھا۔ وہ برف سے اتنا خوف زدہ نہیں تھا، لیکن وہ ان دوستوں کی وجہ سے اداس تھا جو سردی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے ان دوستوں میں ایک بھالو، دو خرگوش اور ہرن تھا جو پیدا ہونے سے لے کر اب تک اس کے ساتھ رہے تھے۔ یہ تمام جانور اپنی عجیب و غریب حرکتوں سے اسے ہر وقت خوش رکھتے تھے اور ٹارزن جنگل میں جہاں بھی جاتا یہ جانور اس کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن اب کئی دنوں سے اکیلا اس جنگل میں اس طرح گھوما کرتا تھا جیسے وہ کسی قافلے سے بچھڑ گیا ہو۔ آخر وہ کتنے دن اس طرح گزارا کرتا، اسے اپنے یہ ساتھی بے حد یاد آ رہے تھے۔ چنانچہ اس نے مکمل طور پر فیصلہ کر لیا کہ وہ آج اس جنگل کو چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن ابھی وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ آخر اسے کدھر جانا چاہیے۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد اس نے مشرق کی طرف سفر شروع کر دیا۔ وہ سمندر کے کنارے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ سارا راستہ جنگل کی طرح برف سے اٹا ہوا تھا اور کئی جگہ برف اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے لیے راستہ تلاش کرنا مشکل تھا، لیکن وہ چلتا رہا اور آخر کار جنگل ختم ہو گیا۔ اب راستہ صاف تھا لیکن برف کم نہیں تھی۔ سمندر بھی ابھی کافی دور تھا۔ وہ آج سے 4 سال پہلے اسی راستے سے ان گھنے جنگلوں کی طرف آیا تھا۔ آیا تو وہ یہاں کی سیر کرنے کے لیے تھا، لیکن پھر اسے یہاں کے جنگلات اس قدر پسند آئے کہ ٹارزن نے سوچا کہ دوسرے جنگلات کی نسبت یہاں رہنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے نزدیک ایک تو آبادی نہیں تھی، دوسرا یہاں ایک مرغ سے کچھ بڑا ایک ایسا جانور تھا جو ویسے تو اکثر ایک درخت سے دوسرے درخت تک اڑان رکھتا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ جب زیادہ خوش ہوتا تھا تو اونچی اڑان بھی اڑتا تھا۔ ٹارزن کو اس مرغ کا گوشت بے حد پسند تھا اور جب بھی اس کا جی چاہتا اس کو پکڑ کر بھون لیتا اور اپنی بھوک مٹا لیتا۔ بعض اوقات جب ٹارزن کو زیادہ بھوک لگتی تو وہ یہ مرغ ایک ایک درجن تک کھا لیتا۔ ٹارزن اب کافی عرصے کے بعد اس جنگل کو چھوڑ کر جا رہا تھا، لیکن اس جنگل کی یادیں اس کے دل میں اب بھی موجود تھیں۔ اس نے سامنے دیکھا تو سمندر نظر آ رہا تھا، لیکن سمندر میں جا بجا برف کے بڑے بڑے تودے تیر رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ آج کل چاروں طرف برف ہی برف نظر آ رہی ہے، ورنہ اس ساحل پر گرمیوں میں بڑی رونق ہوا کرتی تھی۔ مغربی ممالک کے دولت مند افراد یہاں سیر کی غرض سے آتے تھے اور کشتیوں میں بیٹھ کر سمندر کی سیر کیا کرتے تھے، لیکن اب دور دور تک ٹارزن کے سوا کوئی دوسرا انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جوں آگے بڑھتا جا رہا تھا، سمندر کی طرف سے آنے والی تیز ہوائیں ٹارزن کے جسم سے ٹکرا کر عجیب پھڑ پھڑ کی آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ یہ ہوائیں نہ صرف تیز تھیں بلکہ یخ بستہ بھی تھیں۔ ٹارزن کی جگہ کوئی بھی دوسرا شخص ہوتا تو اس سردی سے جم کر ہلاک ہو جاتا، لیکن ٹارزن بے حد حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جوں وہ آگے بڑھتا تھا برف میں کمی واقع ہو رہی تھی۔ اس نے فاصلہ بھی کافی طے کر لیا تھا۔ اب اگرچہ شام ہونے لگی تھی لیکن ٹارزن اس کے باوجود چلا جا رہا تھا، کیونکہ اسے ابھی تک کوئی ایسا جنگل نظر نہیں آ رہا تھا جہاں وہ قیام کر سکے۔ وہ 2 گھنٹے مزید چلتا رہا، یہاں تک کہ آسمان پر سورج کی بجائے چاند اور تارے نکل آئے تھے۔ اسے اس وقت شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ ساحل سمندر سے اس جنگل کا راستہ بڑی سرعت سے طے کیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کتنے ناریل پی لیے، اور جب پیاس بجھنے کے بعد اسے فرحت کا کچھ احساس ہوا تو اسے تھکاوٹ بھی کم محسوس ہونے لگی۔ انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلا کرتی ہیں۔ یہی کیفیت کچھ اس وقت ٹارزن کی تھی۔ وہ اب عجیب و غریب آواز میں چلا رہا تھا، لیکن وہ بڑا حیران تھا کہ اس کی ان آوازوں کے جواب میں جنگل سے اسے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ٹارزن نے سوچا ایسا لگتا ہے کہ تمام جنگلی جانور اس جنگل سے بھی جا چکے ہیں۔
अगरचे यहाँ भी बर्फबारी होती रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि रास्ते बंद हो गए हों या कोई चीज नजर ही ना आ रही हो। पहले जंगल में जब टार्जन इस तरह चलाता था तो उसके जवाब में जंगल के तमाम जानवर अपनी अपनी जबान में इसका जवाब देते थे, और यही वो चीज थी जिससे टार्जन खुश हो जाता था। इसे जंगल के तमाम जानवर अपने दोस्त महसूस होते थे और दोस्ती ने इसे जंगल में रहने पर मजबूर कर दिया था। टार्जन ने सोचा कि शायद जंगली जानवर कुछ आगे हों, इसलिए इसने तेज कदमों से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वो जंगल में तकरीबन 1 मील तक चलता गया, लेकिन इसे कोई जंगली जानवर नजर नहीं आया। इसका दिल बेहद उदास था, क्योंकि अब यही जानवर तो इसका खानदान थे। वो उन्हीं से खेलता था, उन्हीं से बातें करता था और उनके साथ ही अपने दुख सुख बयान करता था। टार्जन ने इतनी मसाफत महज इसलिए तय की थी कि वो किसी दूसरे जंगल में जाकर अपने दोस्तों से मिल जाएगा, लेकिन यहां भी उसे तन्हाई से वास्ता पड़ा था जिससे भाग कर आया था। अब इसने आगे जाने का इरादा तर्क कर दिया और एक बड़े दरख्त की मोटी शाख पर चढ़कर सस्ताने लगा। इतनी लंबी मसाफत ने इसे बहुत थका दिया था, इसलिए इसे थोड़ी देर के बाद गहरी नींद ने आ लिया। इसे कुछ इल्म नहीं कि वो कितनी देर तक सोया रहा, लेकिन जब उसकी आंख खिली तो दिन की रोशनी फैली हुई थी। इस जंगल में जिंदगी की नई लहर नजर आ रही थी। दरिंदा तो अगरचे इसे कोई नजर नहीं आया था, ताहम परिंदों की खुशकुन आवाजें इसके कानों में पड़ने लगी थीं। जिस दरख्त पर लेटा हुआ था वहां भी कुछ तोते अपनी सुरीली आवाज में टीटू टीटू कर रहे थे। टार्जन ने अंगड़ाई ली और सुबह की ताजा हुआ खाने के लिए एक लंबा सांस लिया। ठंडी ठंडी हुआ इसके सीने में भर गई और इसे एहसास हुआ कि वो फिर से ताजा दम हो गया है। वो दरख्त से नीचे उतर आया और एक जानिब को चलने लगा। अब टार्जन जंगल के जिस हिस्से की तरफ जा रहा था वहां दरख्त ज्यादा घने मालूम हो रहे थे। उसने देखा कि कुछ दूर झाड़ियों में दबका हुआ एक खरगोश इसे खौफजदा नजरों से देख रहा है। टार्जन रुक गया और खरगोश की मखसूस आवाज में इसे आवाज दी। खरगोश के कान खड़े हो गए और वो दाएं बाएं बेचैनी से देखने लगा, लेकिन इसे ये मालूम नहीं हो सका कि ये आवाज कहां से आ रही है। टार्जन बेहद खुश हुआ और फिर इसने अगले लम्हे खरगोश को पकड़कर अपनी हथेली पर खड़ा कर लिया। टार्जन में बड़ी अजीब कशिश थी कि वो जिस जानवर को हाथ लगाता वो इसका गिरविदा हो जाता। टार्जन के दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। वो उसे अपने हाथ पर नचाता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा। अचानक फिजा में एक धमाका हुआ और पूरा जंगल लरज उठा। टार्जन बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसे इस जंगल में इस तरह धमाके की उम्मीद नहीं थी। इस धमाके का मतलब था कि यहाँ इस जंगल में कोई इंसान मौजूद है और ये गोली या तो उसने किसी दरिंदे पर चलाई है या फिर टार्जन पर। ये सोच के मोहतात होकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि वो ये देखकर हैरान रह गया कि जंगल में घने दरख्तों के नीचे एक पुरानी सी कार खड़ी थी। वो इस कार की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो अभी कार के करीब नहीं पहुंचा था कि इसके कानों ने एक रोबदार आवाज सुनी। ठहरो। टार्जन रुक गया और उसने दाईं तरफ देखा तो एक 6 फुट का जवान हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। नौजवान न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि अच्छे जिस्म का मालिक होने की वजह से ताकतवर भी महसूस हो रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ कुछ लम्हे देखते रहे। आखिरकार इस नौजवान ने चंद कदम आगे बढ़कर टार्जन से कहा, कौन हो तुम और तुम्हें इस जंगल में आने की जुर्रत कैसे हुई? टार्जन ने इस बात की वजह से अजीब अंदाज से इसकी तरफ देखा और कहा, नौजवान, ठीक है तुम एक ताकतवर नौजवान हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें किसी अजनबी शख्स से बात करने का सलीका आना चाहिए। ये बात सुनकर नौजवान ने एक खौफनाक कहकहा लगाया और कुछ करीब होकर कहा, ए नंग धड़ंग इंसान तो जिसे पहने तक को लिबास मुयस्सर नहीं है, मुझे गुफ्तगू का सलीका बताने आया है। टार्जन ने इसके लहजे और उसकी नजरों में छपी हुई नफरत को नजरअंदाज करते हुए कहा, नौजवान तुम बदतमीज ही नहीं माजूर भी हो, लेकिन इसके बावजूद मैं किसी इंसान से ज्यादती करने के हक में नहीं हूं। मैंने ये कार देखकर सोचा था कि शायद कोई इंसान किसी मुश्किल में मुब्तला होगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि तेरी मदद करने की बजाय मुझे तुझे तमीज सिखाना पड़ेगी। नौजवान ने टार्जन की बात सुनकर नफरत से कहा कि किसी भीख मांगने वाले की औलाद जानता है कि ये बंदूक जो मेरे पास है इसकी एक गोली तेरे सीने में बड़ा छेद कर देगी कि तो दोबारा सांस लेने के काबिल नहीं होगा। इसलिए बेहतरी यही है कि जिस कदर मुमकिन है तो अपनी ये मनहूस सूरत और ये नंगा जिस्म लेकर यहाँ से दफा हो जा।
और ये बात कान खोल कर सुन ले के मोड़ कर पीछे देखोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और मजीद कोई बात किए बगैर गोली मार दूंगा। टार्ज़न ने दिल में सोचा कि नौजवान कुछ ज्यादा सरफिरा महसूस होता है और हो सकता है कि उसने कुछ इंसानों को कत्ल भी किया हो, इस वजह से इसके लहजे में इस कदर बढ़ बोलापन है। टार्ज़न ये सोच रहा था कि इस नौजवान ने गुस्से से कहा, सोचते क्या हो, जाते क्यों नहीं। टार्ज़न पीछे हटने की बजाय इसकी तरफ बढ़ गया। अब दोनों में बड़ा कम फासला रह गया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। बंदूक का रुख अब टार्ज़न की तरफ था और उस नौजवान ने ट्राइगर पर उंगली रखी हुई थी। जाते क्यों नहीं हो, नौजवान ने गुस्से से कहा, लेकिन इस बार टार्ज़न ने जवाब देने की बजाय इसकी बंदूक को पकड़कर इस तरह खींचा कि वो नौजवान सीधा जाकर एक दरख्त से जा लगा। बंदूक अब टार्ज़न के हाथ में थी और गोली जो कुछ देर पहले नजर आ रही थी अब रफू चक्कर हो चुकी थी और वो टार्ज़न को ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे वो इंसान नहीं कोई बिला हो। आखिरकार बड़ी मुश्किल के बाद इसने कहा कि हम 1 करोड़पति की बेटी को अगवा करके लाए हैं। मेरे 3 साथी हैं। वो इस वक्त लड़की को दूसरी तरफ वाली गार में लेकर छुपे हुए हैं। टार्ज़न ने पूछा, क्यों अगवा करके लाए हो? हम इससे रकम हासिल करना चाहते हैं। ये अच्छा तो ये बात है, टार्ज़न ने कहा और गिरबान से पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया और एक बार जमीन पर पटक कर इससे कहा, उठो और मेरी इस गार की तरफ रहनुमाई है करो जहां तेरे साथी इस लड़की को लेकर छुपे हुए। टार्ज़न का हाथ जख्मी हो चुका था और इसमें से खून बह रहा था। नौजवान दरख्त का सहारा लेकर दोबारा उठा और बड़ी हैरत से टार्ज़न की तरफ देखने लगा। टार्ज़न ने इसके करीब जाकर उसकी बंदूक को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और नौजवान को गिरेबान से पकड़कर ऊपर उठा लिया और गुस्से से कहा, अब बताओ तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? नौजवान अभी तक हैरान और परेशान था। फौरी तौर पर कोई जवाब ना दे सका। टार्ज़न ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और कड़क कर कहा, बोलो कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? ये थप्पड़ खाने के बाद तो इस नौजवान का भी बुरा हाल हो गया था। सारी तेजी तर्रारी खत्म हो गई। अब वो मरने के करीब हो चुका था। उसने फौरन हाथ जोड़ दिए और बोला, मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं तुम्हें अभी उधर लिए चलता हूं। ये कहकर वो फौरन उठा और लंगड़ाता हुआ एक तरफ चल दिया। 1 फरलांग के फासले पर जाकर वो शख्स रुक गया और उसने टार्ज़न से कहा, मुझ में अब मजीद चलने की हिम्मत नहीं है, ताहम मैं तुम्हें बताता हूं कि वो गार जिसमें वो छुपे हुए हैं यहां से थोड़े फासले दाएं तरफ है। ये कहते हुए वो नौजवान गिर पड़ा। टार्ज़न ने फौरन इसे उठाया तो उसने देखा कि नौजवान की सांस रुक रही है और ऐसा लग रहा है जैसे वो चंद लम्हों का मेहमान है। टार्ज़न ने इसे मुख्तसर सजा देने के लिए मारा था। वो ये तो नहीं चाहता था कि वो मर ही जाए, इसलिए टार्ज़न ने अपने थैले से एक मखसूस किस्म की दवा निकाली और उसके 2 कतरे नौजवान के हल्क में पटका दिए, जिससे नौजवान फौरन ही संभलने लगा और कुछ देर के बाद इसकी हालत काफी बेहतर नजर आने लगी। अब टार्ज़न की तरफ तशक्कुर आमेज नजरों से देख रहा था, क्योंकि उसे अपने जिंदा बच जाने की कोई उम्मीद न थी। तुम वो दरख्तों में छप जाओ, मैं उनसे निपट कर आता हूं, टार्ज़न ने कहा। तो वो शख्स बोला, नहीं, वो मुझे मुखबरी के इल्जाम में गोली मार देंगे। टार्ज़न ने कहा, तुम उनकी फिक्र मत करो, लेकिन अगर तुम इस हालत में यहां से चल पड़े तो रास्ते में कहीं न कहीं गिरकर खत्म हो जाओगे, और मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मैं इंसानों को जिंदा देखना चाहता हूं। ये कहकर टार्ज़न इस गार की तरफ बढ़ गया। कभी मारता है और कभी जिंदा रखना चाहता है, लेकिन यही कुछ सोचते हुए वो वहां से हटकर घने दरख्तों की ओट में हो गया और वहां एक दरख्त से टेक लगाकर बैठते ही इसे नींद ने आ गया। टार्ज़न ने जब गार में कदम रखा तो पहले इसे वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। अंधेरा बेहद ज्यादा था, लेकिन टार्ज़न आगे बढ़ गया। इसे यकीन था कि इतनी मार खाने के बाद शख्स झूठ नहीं बोल सकता। चुनांचे जब वो तकरीबन 100 फुट अंदर गया तो उसकी आंखें कुछ देखने के काबिल हो गईं। अब वो आगे बढ़ गया। अब इसे मध्यम रोशनी नजर आ रही थी और बातों की आवाजें भी सुनाई देने लगी थीं। टार्ज़न को यकीन हो गया कि वो गुंडे यहीं हैं। अब वो मजीद एहतियात से चलने लगा था और जूं वो कदम बढ़ा रहा था आवाजें साफ होती जा रही थीं और रोशनी भी बढ़ती जा रही थी। अब सामने का मंजर काफी वाज़ेह हो गया था, लेकिन दरमियान में एक दीवार हाइल थी और वो गुंडे इसके पीछे बैठे हुए थे।
टार्ज़न ने भागकर एक दूसरी दीवार के पीछे पनाह ली तो सामने का मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया। टार्ज़न ने देखा कि 3 बदमाश एक लालटेन किस्म की चीज से रोशनी के खुशगपियों में मसरूफ हैं और एक लड़की उनके दरमियान खौफजदा होकर उनकी बातें सुन रही थी। लड़की के चेहरे से खून रस रहा था और उसके बाल भी बिखरे हुए थे और वो उन गुंडों के दरमियान बेहिस बुत की तरह बैठी थी। टार्ज़न ने ये देखकर अंदाजा लगा लिया कि गुंडे उसे यकीनन मारते पीटते रहे होंगे। टार्ज़न को इस लड़की पर बेहद तरस आया क्योंकि अभी उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा 14-15 साल की होगी। लड़की का अच्छी तरह से जायजा लेने के बाद टार्ज़न ने गुंडों का जायजा लेना शुरू किया। इनमें एक जो दाएं तरफ बैठा था, उम्र में वो 50 साल के लगभग था, लेकिन सूरत से ही जराइम पेशा लगता था। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें बेहद डरावनी लग रही थी। इसके साथ दूसरे दोनों शख्स सेहतमंद और उसकी निस्बत जवान थे, लेकिन सूरत से वो भी आदी मुजरिम लगते थे। उनके पास ही जमीन पर बंदूकें पड़ी थीं, लंबे लंबे पिस्तौल और कुल्हाड़ी किस्म का हथियार भी पड़ा था। टार्ज़न ये सोचने लगा कि उनको किस तरह काबू किया जाए। आखिरकार उनमें से एक उठा और दूसरे से बोला, मैं अब डेविस को अंदर भेजता हूं ताकि वो भी अगर कुछ खा पी ले। दूसरों ने कुछ नहीं कहा, वो बस खाने पीने में महव थे। ये शख्स झूमता झामता हुआ अब टार्ज़न की तरफ ही आ रहा था। टार्ज़न कुछ और पीछे हट गया और जब वो शख्स टार्ज़न के करीब से गुजरने लगा तो टार्ज़न ने इसके सर पर जोर का हाथ मारा। वो बगैर कोई आवाज निकाले सीधा टार्ज़न के बाजू पर आ गया। टार्ज़न ने इसे उठाकर एक तरफ किया और उसकी पतलून में लटका हुआ लंबी नाल का पिस्तौल लिया और उसके बाद इसने दूसरे 2 बदमाशों का जायजा लिया तो उसे महसूस हुआ कि उनको इस कार्रवाई का इल्म नहीं हुआ। चुनांचे टार्ज़न ने वो पिस्तौल उठाकर वहां फेंक दिया जहां वो बैठे हुए थे। पिस्तौल जब वहां गिरा तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठे और उन्होंने पीछे की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी न था। टार्ज़न ने देखा कि दोनों एकदम खौफजदा हो गए थे और एक दूसरे की तरफ देखकर दोनों टार्ज़न की तरफ आने लगे। जब वो टार्ज़न के करीब पहुंचे तो टार्ज़न ने एक के बाद दीगरे दोनों के एक एक हाथ मारा और वो दोनों बगैर किसी आवाज के जमीन पर गिरे। टार्ज़न ने उनके भी पिस्तौल निकाल कर दूर फेंक दिए और फिर तीनों को घसीटता हुआ इस जगह ले गया जहां वो लड़की बैठी थी। लेकिन लड़की ने जब एक कद-आवर और नंग धड़ंग शख्स को अपनी तरफ आते देखा तो वो और भी सहम गई। टार्ज़न ने लड़की से कहा, ये लड़की खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। ये लोग तुम्हें अगवा करके लाए हैं और तुम्हारे बुरे में रकम लेना चाहते हैं। लड़की ये बात सुनकर बेहद हैरान हुई और टार्ज़न को फटी फटी नजरों से देखने लगी कि आखिर ये कौन है और इसे इन तमाम बातों का इल्म कैसे हुआ है। टार्ज़न ने इससे कहा, तुम मेरे साथ चलो। लड़की टार्ज़न की ये बात सुनकर खौफजदा हो गई। टार्ज़न ने इसकी इस कैफियत को देखकर छोटिए इससे कहा, रो नहीं लड़की, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें इन गुंडों से बचाने के लिए आया हूं। लड़की को ये बात सुनकर हौसला हुआ और उसने टार्ज़न से कहा, तुम मुझे कहां ले जाओगे? मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। टार्ज़न ने कहा, मगर कैसे? लड़की ने पूछा तो टार्ज़न ने कहा, ये जो आदमी तुम्हें लेकर आए थे वो तुम्हें घर भी पहुंचाएंगे। इसके बाद टार्ज़न बेहोश आदमियों को वहीं छोड़कर लड़की के साथ गार से बाहर की तरफ चल पड़ा। टार्ज़न ने सोचा कि जब उनको होश आएगा तो ये सोचकर परेशान हो जाएंगे कि आखिर उनको किसने बेहोश किया है, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। टार्ज़न जब लड़की को लेकर जंगल में पहुंचा तो डेविस गहरी नींद सो रहा था। लड़की ने उसे देखकर कहा, ये बहुत जख्मी नजर आ रहा है। टार्ज़न ने लड़की से कहा, पहले मैंने इसकी मरम्मत की थी और बाद में उसने मुझे सब कुछ बताया था। ये तो मरने लगा था, लेकिन फिर मैंने उसे एक दवाई दी तो उसकी हालत बेहतर हो गई है। अब तुम उसके साथ चली जाना और जब तक उन गुंडों को होश आएगा तुम यहां से दूर जा चुकी होगी। लड़की टार्ज़न की बातें सुन रही थी और उसने एक शख्स की सूरत देख रही थी। वो जब इस गार में आई थी तो उसने सोचा था कि वो अब जिंदगी भर इस गार से ना निकल सकेगी, और ये हकीकत ही तो थी। अगर टार्ज़न इधर ना आता तो उसे कौन बचा सकता था? टार्ज़न ने डेविस को जगाया और उसे कहा, डेविस तुम इस लड़की को लेकर फौरन निकल जाओ। डेविस ने आंखें मिलते हुए टार्ज़न से पूछा, मगर मेरे बाकी साथियों का क्या हुआ है?
वो फी अलहाल बेहोश हैं और तवक्को है कि आधे घंटे तक वो होश में नहीं आ सकेंगे, इसलिए तुम फौरन चले जाओ। डेविस और लड़की दोनों कार के करीब आए। कार अगरचे टूट फूट चुकी थी लेकिन इसका इंजन सही था। डेविस ने कार को स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट हो गई। लड़की ने कार में बैठने से पहले टार्जन का शुक्रिया अदा किया और उससे कहा कि अगर वो कभी शहर आए तो इससे जरूर मिले। ये बात सुनकर टार्जन ने एक कहकहा लगाया और लड़की से कहा, ए भोली शहजादी, मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि तुम अपने घर बहिफाजत पहुंच जाओ। डेविस अगरचे अब पहले की निस्बत काफी बेहतर था, लेकिन फिर भी उसके जिस्म में हल्का दर्द महसूस हो रहा था। वो भी टार्जन का मशकूर था। टार्जन ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। कार के चले जाने के बाद टार्जन काफी देर तक वहां खड़ा कार को जाते हुए देखता रहा। इसके बाद इसने जंगल का रुख किया, लेकिन अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो तीनों बदमाश जिन्हें टार्जन ने बेहोश किया था इस तरफ आ रहे हैं। चूंकि उन्हें ये इल्म नहीं था कि उनके साथ जो कुछ हुआ है वो टार्जन ने किया है, इसलिए उन्होंने टार्जन के करीब आकर इससे पूछा, ए लंबे आदमी, तो ने इधर किसी लड़के और लड़की को तो नहीं देखा? उनका ये सवाल सुनकर टार्जन को एहसास हुआ कि ये लोग ये समझ रहे हैं कि उनके साथ ये सब कुछ उनके साथी डेविस ने किया है। जब टार्जन से उनको कोई जवाब न मिला तो उन्होंने टार्जन को बंदूकों के घेरे में लेकर रोब से कहा, जल्दी बतौरना तुम्हें गोलियों से छलनी कर देंगे। टार्जन ने सोचा कि इन बदमाइशों का लहजा किस कदर सख्त होता है और वो हर किसी से बदतमीजी से पेश आते हैं। टार्जन ने गार में तो उनको कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब इसके दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि वो जरा उनका दिमाग दुरुस्त कर दे। चुनांचे टार्जन ने कहा, हाँ मैंने देखा है, वो इस तरफ गए हैं। ये सुनते ही वो तीनों बदमाश तेजी से इस तरफ दौड़े। जोनी उनके रुख दूसरी तरफ हुए। टार्जन ने एक एक लात उनकी कमर पर रसीद की और वो औंधे मुंह जाकर गिरे। उनकी बंदूकें भी उनके हाथों से गिर पड़ी थीं और वो अब किसी मेंढक की तरह बेबस लेटे हुए थे। टार्जन ने इनको उठाया और सीधा करके एक एक थप्पड़ रसीद किया तो उनकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। टार्जन ने उनके हाथ दरख्तों की बारीक बारीक टीनों से पीछे की तरफ बांध दिए और उनसे कहा, अब सीधे दफा हो जाओ और पीछे मुड़कर न देखना और न फिर किसी को अगवा करना। इस बात पर गुंडे फौरन चौंके कि टार्जन को लड़की के अगवा का किस्सा कैसे मालूम हुआ है। टार्जन ने उनके चेहरे से सवाल पढ़कर उनको बताया कि उसे न सिर्फ इस बात का इल्म है बल्कि उनको गार में बेहोश भी इसी ने किया था। अब बदमाशों को यकीन आ गया था कि वाकई ये इसी शख्स का काम हो सकता है। इसके बाद उन्होंने टार्जन से कुछ नहीं कहा और तेज तेज कदमों के साथ वहां से रुखसत हो गए। टार्जन उनको जाते हुए देखता रहा। इसे यकीन था कि अब ये गुंडे आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। ताहम टार्जन को इस बात की खुशी थी कि इसने मासूम लड़की को गुंडों के चुंगल से आजाद करवाया।